Hello dear students, I welcome you again in this video. But before gonna start with the video, I would like to request you all, please subscribe the channel, like the channel. आपके लिए आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आने वाला हूँ रिगार्डिंग योर एडमिशन प्रोसेस। CTAU, MBM जोधपुर और RTU कोटा का कंपैरिजन वीडियो लेकर आऊँगा वर्सेस कि कौन सा बेस्ट है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Let us start with the video of one of the most demanding video of Rajasthan Technical University Kota Engineering College review. Actually, Rajasthan Technical University is a university जिसके थ्रू लगभग 60 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज एफिलिएटेड हैं। तो सब क्या पॉपुलर नेम RTU से ही जानते हैं, बट RTU के अंदर ही यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है। तो कॉलेज का जो एक्चुअल नेम है वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है, या फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा। रीप कोड 1005 है। सो गो विद द बेसिक आइडिया अबाउट राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी. So University Department Rajasthan Technical University is the leading institute of the state based in Kota, Rajasthan. It was formerly known as Engineering College Kota ECK. The institute was established in year 1981. So it is one of the oldest institute of state as government funded institute to excel the technical education of the state. 1981 में establish हुआ, बहुत पुराना institute है, अगेन राजस्थान का। University Department RTU is situated in the coaching capital of the country. Kota is known as coaching capital of the country that receives its major technical influence from the presence of 4 major power plants situated at its periphery, namely यहाँ पर कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जवाहर सागर डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, और पास में ही अंता 12 में नेचुरल गैस थर्मल पावर स्टेशन है, एंड राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है। तो इसके नियर बाय बहुत सारे टेक्निकल पावर प्लांट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग में। अगेन कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE. नेक्स्ट, इट इज लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर चंबल. चंबल के किनारे बसा हुआ है कॉलेज. इट इज 14 किलोमीटर फ्रॉम द कोटा रेलवे स्टेशन एंड इट इज सिचुएटेड ऑन अ रावत भाटा रोड. वेरी लश ग्रीन कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, क्योंकि पास में ही चंबल रिवर बहती है, तो आसपास का एरिया बहुत ग्रीनरी वाला है। और कोटा वैसे भी राजस्थान के बहुत खूबसूरत शहरों में से एक है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 385 एकर्स ऑफ लैंड, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर 7.5 किलोमीटर के तो रोड्स ही बने हुए हैं इनसाइड द कैंपस, और इस पर जो कंस्ट्रक्शन एरिया हो रखा है वो 54,000 स्क्वायर मीटर पर कंस्ट्रक्शन एरिया है। ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है राजस्थान की जहां पर IBM का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप हुआ था। इस कॉलेज में 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं BTech के। इसके अलावा 12 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स MTech, MBA, MCA, PhD and various other courses as well. Here are infrastructure and facilities related details. So RTU Kota has been approved by All India Council of Technical Education, NSS National Service Scheme and National Cadet Corps. NCC is available in the campus. There is a central library, vast collection of books, journals and online resources. There is a computer labs, state of art computer labs with latest hardware and software. Big auditorium, hostels facility, sports facilities very good, 3 indoor badminton hall, football ground, cricket ground, basketball, volleyball court, playground and other sports facilities are also there. Canteen facilities there, basic medical facilities there. There is a dispensary inside the campus, ATM, bank, post office facility inside the campus, Wi-Fi campus, gymnasium facility inside the campus, research labs of few specialization with good research labs are available in the campus. Smart classrooms are available in the campus. Incubation center is available in the campus for startups and entrepreneurship
development. Mechanical workshop is very big. Laboratories are good. Renovation and under process. Few laboratories are of old culture, but renovation is under process. New labs are developing very soon. Other than this, 3 days Tech Fest is conducted in the institute, that is known as THAR. THAR 3 days का टेक फेस्ट होता है इंस्टीट्यूट में. दैट इज द लार्जेस्ट टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट ऑफ राजस्थान. is organized by institute in which students from various affiliated colleges and students from various engineering college across the India participated. अगर आप अपनी हॉबीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, टेक्निकल हॉबीज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रोबोटिक्स क्लब्स की फैसिलिटी है, मास्टर बिल्डर्स है, सेरेतु क्लब है, एरो मॉडलिंग क्लब है, टेक्नो क्रिप्टिक्स है, टेक नाइट्स है, वॉल्सवर्थ है. इसके अलावा कल्चरल काउंसलिंग में आप डांस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, म्यूजिक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रामा क्लब ज्वाइन कर सकते हैं टू रेज योर हॉबीज. तो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा पीछे चल के जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है, आरटीयू कोटा, ये कैसे बना, तो एक बार पीछे चलकर देख लेते हैं कि पहले किस नाम से आरटीयू कोटा को जाना जाता था. तो इसकी टाइमलाइन को एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ आरटीयू कोटा. तो सबसे पहले जो ब्रांच स्टार्ट हुई थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टार्ट हुई थी. 1980 में कॉलेज ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी. उस टाइम पे कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा के नाम से जाना जाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा. और यह राजस्थान यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज था, राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज था. उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1982 में आई. उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग 1982 में आई. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1985 में आई. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1990 में आई. उसके बाद 2000 में द कॉलेज शिफ्टेड इट्स करंट कैंपस स्प्रेडिंग ओवर 200 एकर्स. तो कॉलेज ने अपना 200 एकर्स में अपना कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर शिफ्ट हो गया था. उसके बाद 2006 में द कॉलेज बिकम अ पार्ट ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी. तो हम बात करें जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो पिक्चर में कब आई, इन 2006. Next, in 2009, college granted autonomy stated by UGC. In 2012, introduction of new branches like IT and chemical engineering. In 2015, the college completed its 35 years of establishment in 2015. So more than 35 years old this college is. The college has grown to become one of the top engineering college in Rajasthan up to 2020, and at present today is one of the premier engineering college in Rajasthan, known for its academic excellence, research focus and industry collaboration. So this is the timeline of Engineering College Kota, how Engineering College Kota now becomes Rajasthan Technical University Kota, and the college is known as University Department Rajasthan Technical University Kota. तो अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें एडमिशन होता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडमिशन. तो क्योंकि यह स्टेट का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो यहाँ पर भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस रीप के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी है जो राजस्थान में एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज से, उनके लिए एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट कराती है. यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो एडमिशन मिलता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को JEE मेंस के बेसिस पर मेरिट अलॉट होती है फर्स्ट प्रेफरेंस पे, और अगर उसके बाद सीटें खाली रहती हैं तो 12th बेसिस पर कंसीडर किया जाता है. तो सेकंड प्रायोरिटी पर 10+2 एग्जामिनेशन में जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पर एडमिशन मिलता है. यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं जिन पर एडमिशन अवेलेबल है वो 780 सीट्स हैं, जिसमें से 120 गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं जिसमें काफ़ी कम फीस में एडमिशन हो जाता है, जो कि केवल इन 3 ब्रांचेस में अवेलेबल हैं, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. उसके अलावा बाकी की जो 660 सीट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड सीट्स हैं जहां पर फुल फीस पे करनी पड़ती है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स. उसके बाद यहाँ पर जो TFWS सीट्स हैं जो सुपरनरी नेचर की होती हैं, जो एक्स्ट्रा 5% होती हैं अदर देन 780 सीट्स, तो ये एक्स्ट्रा 5% जो सीट्स हैं यहाँ पर लगभग 39 के आसपास TFWS सीट्स अवेलेबल होंगी, जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं जिनका
JEE मेंस स्कोर बहुत अच्छा होता है वही स्टूडेंट TFWS सीट्स को ले पाते हैं। बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या जाती है। तो मैं बात करूं जो मोस्टली सीट्स हैं जब जब रीप की काउंसलिंग होती है तो उसमें मैक्सिमम सीट JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पर फिल हो जाती हैं। कुछ थोड़ी बहुत होती हैं जो 12th के बेसिस पर फिल होती हैं, जो कि नॉन डिमांडिंग ब्रांचेस में ही 12th के बेसिस पर सीट मिल पाती है। मैक्सिमम सीट्स आर फिल्ड इन रीप काउंसलिंग राउंड, बट आफ्टर सारे काउंसलिंग रीप के होने के बाद भी काफ़ी सारी सीट्स, लगभग 70 to 90 सीट्स हैं, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से वैकेंट रह जाती हैं। जैसे स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के बाद छोड़ गया, कॉलेज चेंज कर दिया, अपवर्ड मूवमेंट में उसको कुछ दूसरा मिल गया, और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या होता है, इधर से उधर भागता है, शिफ्टिंग करता है, तो उसकी वजह से एट लास्ट भी कॉलेज में सीटें रह जाती हैं डायरेक्ट एडमिशन राउंड के लिए। तो लगभग 70 to 90 सीट्स रह जाती हैं खाली, तो उनको भी डायरेक्ट एडमिशन या स्पॉट एडमिशन के थ्रू फिल किया जाता है, जिसकी गाइडलाइंस भी रीप के थ्रू ही कॉलेजेस को जारी होती हैं। उसी बेसिस पर कॉलेज क्या करते हैं, रीप गाइडलाइंस के बेसिस पर ही कॉलेज एडमिशन प्रोसेस करते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो रीप की जो जनरल मेरिट थी, जिसमें UDRTU कोटा में एडमिशन हो गया था बच्चों का, तो हम बात करें तो रीप जनरल मेरिट जिनकी 193 रैंक से लेकर जनरल मेरिट 14,088 तक थी, इसके बीच में और इसके बीच में जिनकी रैंकिंग थी, उन्होंने अपना एडमिशन RTU कोटा में सिक्योर कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, कितनी कम रैंक से और कितनी ज़्यादा तक वालों को भी एडमिशन मिल गया था। तो कम रैंक में जनरली CS के स्टूडेंट्स ही एडमिशन मिल पाता है जो CS ब्रांच ऑप्ट करते हैं, लेकिन ये जो है 14,088, इस पर कुछ ऐसी ब्रांचें मिल जाती हैं जो कि नॉन डिमांडिंग नेचर की होती है, जिनको स्टूडेंट लेना प्रेफर नहीं करता है। अगर आपको RTU का टैग चाहिए, RTU जाना है, तो आपको नॉन डिमांडिंग ब्रांच 14,000 तक की रैंक पर भी अवेलेबल हो जाती हैं। क्योंकि CS ही मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, तो इसमें एडमिशन कंफर्म होने के लिए आपकी JEE परसेंटाइल में आपकी कम से कम 86 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद IT ECE जो ब्रांचेज हैं, वहाँ पर भी आपकी 78 परसेंटाइल के आसपास होनी चाहिए। उसमें आप +-2 कर सकते हैं, इसके आसपास आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपकी कोई ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है, आपको कोई भी ब्रांच चलेगी, और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं लाइक OBC, WS, SC, ST, तो आप आसानी से RTU कोटा में एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए मैं आपको एक बार लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो क्या गई थी, किस किस रैंक पर किस किस कैटेगरी को एडमिशन मिल गया था, उसका लास्ट ईयर का रिकॉर्ड मैं आपको एक बार शो करा देता हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। तो यहाँ आपको दो चीज़ें देखनी है। जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो आपको कैटेगरी देखनी है, तो ये कैटेगरी है, यहाँ पर कैटेगरी देख लीजिए, और यहाँ पर मेन मेरिट और जो मेरिट जनरल की है ये आप देखते हुए चलना। तो यहाँ पर 193 है, यहाँ से एडमिशन मिलना स्टार्ट हो गया था, और चलते जाइए जो ऊपर की जो ब्रांचेस हैं, ये कंप्यूटर साइंस में ही एडमिशन मिल पाया था इस पर्टिकुलर मेरिट में। जो रीप की ये जो मेरिट आई थी, इस रीप की मेरिट के बेसिस पर स्टार्टिंग के जो 2-3 पेज हैं वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से रिलेटेड हैं या IT ब्रांच से रिलेटेड हैं, जो CS रिलेटेड ब्रांचेस हैं। फिर नीचे अदर ब्रांचेस आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रैंक वेरी कर रही है पर्टिकुलर अदर ब्रांचेस तक पहुंचते पहुंचते। तो जो नॉन डिमांडिंग ब्रांचेस हैं, वहां पर जाते जाते ये जो रीप जनरल मेरिट है ये बहुत आगे तक चली जाएगी, आप देखते जाइए। मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा, आप देख लेना पॉज कर कर, इसको आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो नॉन डिमांडिंग ब्रांचेस हैं वहाँ पर जो रीप मेरिट में जिनकी 14,000 तक भी रैंक थी, उनको वहाँ पर एडमिशन मिल गया था, और 12th बेसिस के मार्क्स पर भी कुछ सीट्स पर एडमिशन मिल गया था। बहुत कम सीट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, बट ज़्यादातर पे JEE के स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन मिला था, इतनी ज़्यादा रैंक होते हुए भी। तो अब देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है RTU कोटा की। तो ज़्यादातर सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, गवर्नमेंट एडेड सीट्स सिर्फ 120 हैं। टोटल इनटेक है वो 780 सीट्स का है, जिसमें गवर्नमेंट एडेड सीट्स सिर्फ 120 हैं। उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस सीट्स बचती हैं 660।
एंड TFWS आर ओनली 39। जो NBA एक्रेडिटेड ब्रांचेज हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी NBA एक्रेडिटेड ब्रांचेज हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स 24 देख लेते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है कॉलेज में, सेल्फ फाइनेंस सीट्स 30 सीट्स, केमिकल इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस 60 सीट्स, सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एडेड सीट 60 सीट्स, सिविल इंजीनियरिंग SFS 60 सीट्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग SFS 120 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SFS 120 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन 30 सीट्स, गवर्नमेंट एडेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सेल्फ SFS 30 seats, Electronics and Communication Engineering SFS 60 seats, Information Technology SFS 60 seats, Mechanical Engineering SFS 60 seats, Petrochemical Engineering SFS 30 seats, Petroleum Engineering SFS 30 seats, Production and Industrial Engineering Government Aided seats 30 seats। तो अब बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है कॉलेज का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर चलते हैं वो प्लेसमेंट का लेकर ही चलते हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज पैकेज गया था, अगर हम 2023 बैच की बात करें तो वो हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 33 lakhs पर एनम, एवरेज पैकेज 7 lakhs पर एनम, मीडियन पैकेज 3.75, टोटल ऑफर्स हुए थे 228 स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स 250 प्लस, कैंपस ऑर्गेनाइज्ड 150 प्लस, and the most popular recruiters are TCS, Reliance Industries, Infosys, Amazon, Microsoft, L&T, TCS, Coinbase and more। और अगर हम 2022 की बात करें तो वहां पर 278 स्टूडेंट्स वी आर प्लेस्ड आउट ऑफ 524 ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, 256 UG स्टूडेंट्स वी आर प्लेस्ड विद अ मीडियन पैकेज ऑफ 3.75 lakh पर एनम इन 2022। ब्रांच वाइज रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है 2023 बैच का, बट प्रीवियस बैचेस का मैं आपको बता दूंगा कि ब्रांच वाइज कितना कितना क्या प्लेसमेंट हुआ था। बट जो फीडबैक कलेक्ट हुआ है स्टूडेंट से कॉलेज के, तो वहाँ पर ये पता चला है कि जो CS ब्रांच है वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा होता है। अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, एट प्रेजेंट सिनेरियो में कंप्यूटर साइंस ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। IT ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, उनका भी CS वालों के बाद उनका भी प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। जो टेक ब्रांचेस हैं उन सभी का प्लेसमेंट बेटर है, बट जो कोर ब्रांचेस हैं उनका प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है अभी इस टाइम पर। तो उनके लिए, कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम है इन रिगार्ड ऑफ देयर प्लेसमेंट। तो कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट जनरली गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की, IAS, तो उस तरफ वो अपना फोकस कर लेते हैं। और ये जो प्लेसमेंट का जो सिनेरियो रहता है, ये आप मान के चलिए ये बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है। अभी प्रेजेंट में कंप्यूटर साइंस की, IT ब्रांचेस की बहुत डिमांड है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में 4 साल बाद जब आप बीटेक की डिग्री लेकर निकलें तो हो सकता है कि उस टाइम पर कोर ब्रांचेस की डिमांड हो। तो ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, प्लेसमेंट टोटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड है कि जब आप पास आउट होते हो तो उस टाइम पे किस इंडस्ट्री में ग्रोथ ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ ज़्यादा है, प्रोडक्शन में ग्रोथ ज़्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ग्रोथ ज़्यादा है, IT सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा है। तो ये सब इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, प्लेसमेंट टोटली इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। जब आप पास आउट होते हैं, जब आपके प्लेसमेंट होते हैं, जिस इंडस्ट्री की डिमांड होती है तो उसी से रिलेवेंट ब्रांच का जो प्लेसमेंट है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एट प्रेजेंट नो डाउट्स कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट अच्छे चल रहे हैं, बट कोर ब्रांचेस को सभी जगह प्रॉब्लम है, सभी कॉलेजेस में प्रॉब्लम है। और प्राइवेट कॉलेजेस तो काफ़ी ज़्यादा पैकेज का प्लेसमेंट्स बताते हैं, उनका एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छा बताते हैं, बट रियलिटी है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि IIT तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी न्यूज़ में आ रहा है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, वहाँ के स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट क्राइसिस हो रहा है, जल्दी से प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। IIT स्टूडेंट्स का, NIT स्टूडेंट्स का भी काफ़ी कोर ब्रांचेस जो हैं उन कोर ब्रांचेस में उनको प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा है या अभी तक हो ही नहीं पाया है। तो जब IIT NIT को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो बाकी सबको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी वो आप समझ सकते हैं। नो डाउट हर कॉलेज से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहता है, वो क्या करता है, कॉलेज का नाम अपने बेसिस पर प्लेसमेंट लेकर कॉलेज का एक तरह से ब्रांड चेहरा बन जाता है। तो आप बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं वहाँ पर देख सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स एक या दो ही होते हैं जो इस तरह के ब्रांड फेस होते हैं। और इस तरह के ब्रांड फेस आपको लगभग हर ठीक ठाक कॉलेज में
एक एक स्टूडेंट्स मिल जाता है जो ऑफ कैंपस जाकर अपना अच्छे पैकेज पर प्लेसमेंट ले लेते हैं, और जो कॉलेज होता है उस चीज़ का एडवांटेज लेता है क्योंकि वो वहाँ का स्टूडेंट होता है, तो वो उसको एज अ ब्रांड बनाकर जगह जगह उसके पोस्टर दिखाकर शो करता रहता है। बट कॉलेज कैंपस में आने वाली कंपनीज हैं, वहाँ पर जो एवरेज पैकेज है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1-2 स्टूडेंट्स को ही अवेलेबल हो पाता है। तो अगर प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स में 44 लाख पर एनम का जो हाईएस्ट पैकेज मिला था वो माइक्रोसॉफ्ट में आरटीयू कोटा में मिला था। जनरली माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, एकदम से पैकेज तो नहीं देती है, ये इंटर्नशिप ऑफर करती है सबसे पहले स्टूडेंट्स को। तो इंटर्नशिप में जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको वह हायर कर लेती है, और जनरली फिर उनको एक अच्छा पैकेज अवेलेबल हो जाता है आफ्टर इंटर्नशिप। तो ये कुछ ब्रांड फेसेस हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 2023 बैच का। तो यहाँ पर 250 प्लेसमेंट्स इन 2023 बैच, 150 प्लस कैंपस फॉर 2023 बैच। उसके बाद ये जो है भूमिका गुप्ता CSE, इनका फोन पे में 33 लाख पर एनम का पैकेज लगा था। एक दूसरी कंपनी है क्वीनबे में भी इनका पैकेज लगा था 10.3 लाख पर एनम का। हेड आउट में 32 लाख पर एनम पे शुभम गौतम IT ब्रांच। उसके बाद फैम पे 24 लाख पर एनम, फैजान हैदर IT ब्रांच, इनका 7 लाख पर एनम पर भी एक कंपनी में पैकेज लगा है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं 12 लाख पर एनम पे व्योमो टेक्नोलॉजीज ECE ब्रांच, ECE डबल ई CSE ECE ECE। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं, इसको देखकर आप आइडिया ले सकते हैं कि कितने बच्चों का कितने पैकेज यहाँ पर सब मेंशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है, अब हम ब्रांच वाइज देख लेते हैं। लेटेस्ट रिकॉर्ड तो ब्रांच वाइज अवेलेबल नहीं है, बट प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड अवेलेबल है ब्रांच वाइज। तो अगर हम बाकी आप देख लेना, मैं 2020 की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर ईयर 2020 की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग 15, कंप्यूटर साइंस 47, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 6, प्रोडक्शन 5, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 13, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 21, मैकेनिकल 30, एरोनॉटिकल 1, IT 20, पेट्रोलियम 0, पेट्रोकेमिकल 2। तो टोटल 160 स्टूडेंट्स का यहाँ से क्या हुआ था, प्लेसमेंट हुआ था इन 2020 केस में। ब्रांच वाइज आप देख सकते हैं। तो ब्रांच वाइज देखें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही गया था। बट यहाँ पर इनटेक इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा सीट्स हैं, कंपटीशन भी हाई है, इस वजह से उतने सारे स्टूडेंट्स जितना यहाँ पर इनटेक है उस रेशो में स्टूडेंट्स को जो प्लेसमेंट मिल पा रहा है वो इतना ज़्यादा है नहीं। और ये रियलिटी है, प्राइवेट में भी इतना नहीं है। अगर कोई दिखाता है तो उस पर इतनी आसानी से आपको यकीन नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए कि प्लेसमेंट का मार्केट हमेशा टाइट था, आज भी टाइट है। थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT ब्रांच में थोड़ा सा बैलेंस बना के रखा हुआ है, बट कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट को अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एट प्रेजेंट। अगर हम 2018 या 19 की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज ने विजिट किया था, तो आप ये इसका भी देख सकते हैं। इन्फोसिस ने 58 को हायर किया था, TCS हो गया, ज़ारो एजुकेशन हो गया। तो किन किन कंपनीज ने कितना हायर किया था वो आप पॉज कर यहाँ पर आप खुद देख लेना। तो इलेक्ट्रिकल में कितने हायर हुए EC में, ये आप पॉज कर देख लेना। तो ये टाइम पर 145 टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट RTU कोटा का फी स्ट्रक्चर क्या है। तो 3 कैटेगरीज में एडमिशन मिलता है, गवर्नमेंट एडेड सीट्स, सेल्फ फाइनेंस सीट्स एंड TFWS सीट्स। तो ट्यूशन फीस की बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड सीट्स में, तो ये वाली जो कैटेगरी है ट्यूशन फीस SC ST गर्ल, मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, आप पॉज कर देख लेना। बाकी हेड्स की डेवलपमेंट फीस क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, क्वेश्चन मनी क्या है, एक्रेडिटेशन फीस क्या है, ये आप पॉज कर देख लेना। तो SC ST गर्ल कैंडिडेट के केस में जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपको 22,500 पे करना पड़ेगा। 1 साल की फीस है ये, 1 ईयर ईयरली है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एडेड सीट्स पर हो, जनरल OBC कैंडिडेट हो, तो आपको 40,500 पे करने होंगे। अगर आपका एडमिशन सेल्फ फाइनेंस सीट्स पर हुआ है तो आपको 90,050 रुपीज़ पे करने होंगे ईयरली। अगर आपका एडमिशन TFWS सीट्स में हुआ है, उसमें भी SC ST गर्ल कैंडिडेट हैं आप, तो 22,500 पे करने होंगे। अगर आप जनरल OBC हैं TFWS में तो 22,500 आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको
ये जो फीस है क्वेश्चन मनी है, ये वन टाइम देनी होती है, और जो यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस है ये आपको वन टाइम देनी पड़ती है। तो अगले सेमेस्टर के लिए आप क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे अगले ईयर के लिए, जो नेक्स्ट ईयर फीस भरने का आएगा उसमें से आप इतना अमाउंट माइनस कर देंगे तो बचा हुआ अमाउंट आएगा, आपको सिर्फ वही पे करना है। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के टाइम एडमिशन में लगता है, उसके बाद ये माइनस होकर जो भी फीस स्ट्रक्चर आ रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3000 है, जिन ब्रांचेस में एनबीए एक्रेडिटेशन है वहाँ पर 3000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो 3000 एक्रेडिटेशन फीस है होती है जिन भी ब्रांचेस में एनबीए एक्रेडिटेशन है। तो टोटल 8 ब्रांचेस हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, आईटी, एमई, प्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब एनबीए एक्रेडिटेड ब्रांचेस जहाँ पर आपको 3000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये फीस आपके लिए इंडक्टिव है क्योंकि फीस वेरिएशन होगा, फीस अभी रिवाइज होगी तो नया फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आप एडमिशन लेने से पहले हो सकता है कॉलेज खुद ही रिलीज कर दे नया फीस स्ट्रक्चर, अगर नहीं करता है तो आप एक बार कॉलेज में फ़ोन कर जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो फ़ोन कर भी पता कर सकते हैं, तो वो आपको लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर भी बता देंगे। इसके बाद हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है कॉलेज के अंदर? तो हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुए थे 1992, 1996 और 2016 में कंस्ट्रक्ट हुए थे। यहाँ पर 5 बॉयज़ हॉस्टल, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं विद इन द कैंपस, जो कि 834 बॉयज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं, 256 गर्ल्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। एवरी हॉस्टल रूम इज फर्निश्ड। हॉस्टल प्रेमिसेस हैव recreational facilities like common rooms with LED TV, table tennis, badminton court, volleyball and basketball court. Security guards are available round the clock. Hostels are located in the close proximity of the academic. तो academic के आसपास ही नज़दीक में ही हॉस्टल बने हुए हैं। तो आपको हॉस्टल फी स्ट्रक्चर है ये पिछले साल का है। तो इसके अंदर जो सिंगल सीटेड रूम है वो आपको पड़ेगा 9060 रुपीज़ का पर एनम एक साल का। इसके अलावा कुछ रेंट आपको देने पड़ते हैं, रेंट ₹300, इलेक्ट्रिसिटी 400 प्लस वाटर्स ₹55 पर मंथ। ये आप देख लेना, इसको रीड कर लेना, मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, इनको भी आप देख लेना पॉज कर। तो सिंगल सीटेड विद अटैच वॉशरूम की बात करें, अटैच वॉशरूम चाहिए तो 13,860 पर एनम। डबल सीटेड विद अटैच वॉशरूम 11,460 पर एनम। डबल सीटेड 7,860 पर एनम। ट्रिपल सीटेड 7,260 पर एनम। तो ये जो ट्रिपल सीटेड है ये जनरली फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है, और आपको एक बार वन टाइम 1000 क्वेश्चन मनी यहाँ पर आपको पे करनी पड़ेगी, जो आपको रिफंड हो जाएगी जब आप कॉलेज से लीव करेंगे 4 साल बाद। उसके बाद मैथ्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग है, यहाँ पर दे रखा है। मैथ्स फीस स्ट्रक्चर एट द रेट ₹140 पर डे आपको देने होंगे, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा ₹30, लंच ₹15, डिनर ₹55। मैथ्स एडवांस आपको 6 मंथ्स का देना है तो वो आप दे देंगे, जो कि 25,200 का है फॉर 6 मंथ्स। ₹2000 क्वेश्चन मनी वन टाइम एंड ₹1500 मिसलेनियस चार्जेस देने होते हैं। सो मैथ्स एडवांस टोटल फॉर फिक्स्ड 6 मंथ्स आपको पड़ेगा 28,700 का। यह आपको पीएनबी कैंपस के अंदर ही बैंक है, उसके चालान के थ्रू आपको जमा कराने होते हैं। तो जो मैथ्स है उसको स्टूडेंट की मैथ्स कमेटी बनी होती है, जो कि डिसाइड करती है किस तरह का खाना होगा क्या नहीं होगा। तो वो स्टूडेंट कमेटी होती है, और वही कमेटी स्टूडेंट्स की कमेटी और कॉलेज की कमेटी हायर करती है मैथ्स कॉन्ट्रैक्टर को लीज बेसिस पर, एग्रीमेंट बेसिस पर। तो वो वहाँ पर मैथ्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जो भी हमने बात देखी है तो उसमें क्या क्या हाईलाइट होकर आया है कि हमें आरटीयू कोटा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट क्यों चूज करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कैंपस ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर 150 प्लस कैंपसेस ऑर्गेनाइज्ड फॉर 2023 बैच स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद जो टॉप पैकेजेस यहाँ पर मिला है उसमें टॉप ऑफर्स 228 स्टूडेंट्स को, जिसमें एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम है, हाईएस्ट पैकेज 33 लाख पर एनम है। यहाँ पर जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं वो 12 ब्रांचेस अवेलेबल हैं इन बीटेक विद टोटल बैच साइज ऑफ मोर देन 600 स्टूडेंट्स है। उसके बाद ग्लोबल एल्यूमिनाई स्ट्रक्चर है, 45 ईयर्स ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विद 17,000 प्लस एल्यूमिनाई है, एक बड़ा एल्यूमिनाई नेटवर्क है। उसके बाद कैंपस है वो 43 ईयर्स ओल्ड कैंपस है, जो कि 400 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन एरिया में फैला हुआ है, जो काफ़ी सारे आईआईटी से भी ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी है अ गवर्नमेंट स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी विद 100 प्लस एफिलिएटेड कॉलेज। तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है खुद अपने आप में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसके अंडर में 100 से ज़्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूट इससे एफिलिएटेड हैं। तो इस तरह के कैंपस में अगर आप बीटेक करते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद इतने सारे कॉलेजेस को रन कर रही है, तो
वहाँ पर जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, वो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस काफ़ी बेटर होते हैं। तो यहाँ पर जो मेजर रिक्रूटर्स हैं ये हम बात कर चुके हैं, आप देख लेना। एनबी एक्रीडेशन है 8 ब्रांचेस के अंदर। अब एट लास्ट मेरा ओपिनियन है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है और ये सबका ओपिनियन है, स्टूडेंट के फीडबैक के बेसिस पर मैंने किया है। बाकी आपका डिसीजन है, इट्स योर चॉइस, आप क्या करते हैं। मैं बस आपके लिए एक रिव्यू लेकर आया हूँ, बाकी डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि डिसाइड आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। लो फीस स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। आपको एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का टैग मिल जाता है, जो कि आपको फ्यूचर में कैरियर ग्रोथ में हेल्प करेगा कि आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग से पास आउट हैं। यहाँ पर वेल एस्टेब्लिश रेप्यूटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये ऑटोनोमस स्टेटस है इसके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसका, ग्रीन कैंपस है, गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, लेबोरेटरीज भी अच्छी है, रिसर्च लैब्स भी हैं यहाँ पर। कुछ पुरानी लैब्स हैं बट इनोवेशन हो रहा है। गेट अ चांस टू स्टडी विद मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। आप जानते हो जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पर एडमिशन होता है, तो आपका जो सर्किल बनता है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा सर्किल आपका बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पढ़ने वाला इन्वायरमेंट हमेशा बना रहता है, स्टूडियस इन्वायरमेंट बना रहता है। इसका एक एक्टिव एलुमनाई नेटवर्क है, बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंटरशिप गाइडेंस, यहाँ पे जो वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है जो काफ़ी आईआईटी एनआईटी से पास आउट है, उनकी मेंटरशिप में, उनकी गाइडेंस में आप बीटेक करेंगे तो उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये कोटा में सिचुएटेड है, तो कोटा एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है राजस्थान का, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, और कोटा पॉपुलर है उसके एकेडमिक इन्वायरमेंट के लिए। और अभी की बात करें, एट प्रेजेंट सीएसई में अच्छा प्लेसमेंट है, बाकी टेक ब्रांचेस में भी अच्छा प्लेसमेंट है, ईसीआईटी। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, कि कॉलेज में फैकल्टी तो अच्छी है, गुड फैकल्टी है फ्रॉम आईआईटीज एंड आईटीज, बट उनको यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। बट अगर आप उनसे पर्सनली कोई हेल्प लेने जाओगे तो वो आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे, बट इतना क्लास लेक्चर्स या लैब अप्रोच में वो नहीं पढ़ा पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं गेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जो कि काफ़ी जूनियर फैकल्टी होती है। सीनियर फैकल्टी उतनी क्लासेस कंपैरेटिवली नहीं ले पाते हैं सभी सब्जेक्ट्स की। एट प्रेजेंट यहाँ पर जो कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट है वो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। इस टाइम पर कोर सेक्टर की इंडस्ट्री में इतना उछाल है नहीं, इस वजह से प्लेसमेंट कोर सेक्टर का थोड़ा डाउन है। ये सभी कॉलेजेस पर एप्लीकेबल है कि कोर सेक्टर का एट प्रेजेंट बात करें तो सभी का प्लेसमेंट डाउन है कोर सेक्टर ब्रांचेस में। एवरेज पैकेज इज़ नॉट गुड, एवरेज पैकेज इतना अच्छा नहीं है। जो हाई पैकेज है वो काफ़ी कम स्टूडेंट्स ले पाते हैं, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज इतना कम है, तो जो प्राइवेट वाले शो करते हैं तो उसको एक बार आप वेरीफाई कर लें। तो कई बार होता है कि बढ़ा चढ़ाकर कई बार कोई प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो दिखा देते हैं, तो एडमिशन लेने से पहले वेरीफाई जरूर करें। ओवरऑल प्लेसमेंट इज नॉट सो गुड एज स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस मोर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है कॉलेज की, इसलिए ओवरऑल प्लेसमेंट या एवरेज अच्छा निकल के नहीं आ पा रहा है। लिमिटेड वाईफाई कनेक्टिविटी हो जाती है कई बार, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, तो किसी किसी कोने में वाईफाई की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना है, ओल्डर बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स ओल्डर हैं, काफ़ी नई भी बन गई हैं, तो अभी भी कुछ लैब्स हैं जिनका रिनोवेशन नहीं हुआ है, उनके अंदर ओल्डर इक्विपमेंट्स हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ओल्डर इक्विपमेंट्स के साथ। इसके अलावा अटेंडेंस रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो कैंपस इवेंट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। उसके अलावा सम बिल्डिंग्स है फैसिलिटी मे बी ओल्डर रिक्वायर्ड रिनोवेशन। जो बिल्डिंग में फैसिलिटीज़ हैं वो ओल्डर हो गई हैं, उनका रिनोवेशन होना अभी बाकी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो इनटेक है वो सीट्स का बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन फॉर प्लेसमेंट्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स कैन बी इंटेंस। तो जो प्लेसमेंट को लेकर और एकेडमिक्स को लेकर जो कंपटीशन है वो आपको अच्छा मिलेगा, और वो कभी आपके लिए फ्रूटफुल भी रहता है कि आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। तो ये अच्छी बात है। कंपटीशन यहाँ पर आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनटेक बहुत ज़्यादा है और सारे जेडब्ल्यू मेंस के स्कोर के बेसिस पर कॉलेज में आते हैं, तो आपको एक अच्छा कंपटीशन
इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक फेस करना पड़ेगा। बाकी ये है कि कोटा का जो वेदर है वो आप जानते ही हैं, जिन्होंने यहाँ पे IIT JEE की प्रिपरेशन की होगी या जो यहाँ पर नए आने वाले हैं, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट इन्वायरमेंट रहता है, समर हीट रहती है, एक्सट्रीम समर हीट, सो विच कैन बी अ चैलेंजिंग फॉर सम स्टूडेंट्स, जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। अब इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट UD इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा का एक रिव्यू, जो कि बहुत ऑथेंटिकेटेड है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, प्लेसमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, जो जनरली आपको यूट्यूब के किसी प्लेटफॉर्म पर इतने एस्पेक्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये प्रॉमिस है कि आपको क्वालिटी का जो कंटेंट है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा इस चैनल पर, एडमिशन मास्टर पर। तो कहीं आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है, लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। आपको ये बेनिफिट होगा कि आने वाले दिनों में जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप मुझे कमेंट भी करेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कमेंट्स का जवाब देने के लिए, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आपके लिए मैं बहुत हेल्पफुल रहूँगा, बट आपसे भी मुझे एक हेल्प की नीड है कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ वो कंपैरिजन वीडियो है, जो कि 3 मोस्ट डिमांडिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें CTAE उदयपुर है, उसके बाद MBM जोधपुर है और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है। तो इन तीनों का कंपैरिजन वीडियो लेकर आने वाला हूँ और आने वाले दिनों में बहुत हेल्पफुल वीडियो लेने वाला हूँ। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड विद मी, एडमिशन मास्टर के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ग्लिम्पसेस ऑफ कैंपस, यहाँ से आपको कुछ कैंपस का आइडिया लग जाएगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।